So hello all, I welcome you all in our next video of English Literature Periodic Test 1, and today we will be starting with lesson 2, Little Girls Wiser Than Men, for class 6th. If you remember, in our last video we have completed the whole poem. That was the first lesson of Periodic Test 1, A Child's Thought, right? So we have completed that poem, and today we will be starting with this lesson, that is Little Girls Wiser Than Men. So let's start. Little girls wiser than men. So what this mean is कि there are this is a story about two little girls who are very wiser, right? Wiser means, you can see the meaning I have written, smarter or intelligent than men. Means the people who were there around these two girls are very intelligent than those people or men, right? So let's start with the story. We all quarrel with our friends while playing, right? Quarrel means fight. जो हम थोड़ी बहुत अपने झगड़े या लड़ाइयाँ करते हैं, तो यहाँ पे द ऑथर इज सेइंग कि वी ऑल quarrel विद आवर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग, मतलब खेलते समय हम अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं. हाउ मच टाइम डज वन टेक टू फॉरगेट अबाउट द quarrel एंड वी फ्रेंड्स अगेन. अब आगे पोएट पूछ रहा है, सॉरी ऑथर पूछ रहे हैं कि कितना समय लगता है अगर हम अपने दोस्तों से लड़ाई भी कर लेते हैं खेलते समय, राइट? तो कितना समय हमें लगता है कि सारा लड़ाई झगड़ा भूलकर हम दोनों या जिनके बीच लड़ाई हुई है वो दोनों लोग दोस्त फिर से बन जाएं, राइट? सो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड्स. रिवॉल्व्स अराउंड मीन्स इट इज़ अबाउट टू फ्रेंड्स. दो दोस्तों की ये कहानी है. मीन्स इट इज़ अबाउट टू गर्ल्स हु आर फ्रेंड्स, Malasha and Akolia. So Malasha and Akolia are their names, right? So let's proceed further. It was an early Easter. Sledging was only just over. Snow still lay in the yards and water ran in streams down the village street, right? So it was an early Easter. Easter is a festival which is celebrated by Christianों के द्वारा ये ईस्टर मनाया जाता है. and it started means they started celebrating when Jesus was reborn. जब जीसस फिर से मरने के बाद क्रॉस पे उनको चढ़ा दिया गया था and he was like put to death. So after when Jesus was born after 3 days, right? So from that particular day the Christians started celebrating this Easter, right? So it was an early Easter. That means it was a festival going on in this particular place, right? Sledging was only just over. Sledging means राइडिंग ओवर स्नो ऑन व्हीकल, ठीक है? तो स्लेजिंग मीन्स उन सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे स्नोफॉल्स होती हैं या बहुत साल के ज़्यादातर समय में स्नो वहाँ पे रहती है, तो वहाँ पे लोग कैसे ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. मोस्ट ऑफ द टाइम दे ट्रैवल बाय on a vehicle, right? Especially that vehicle runs on snow, मतलब जो व्हीकल बर्फ़ पे चलाई जाती हैं, राइट? सो दैट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज़ नोन एज स्लेजिंग. सो स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर, मतलब स्लेजिंग ख़त्म हो चुका था, ठीक है? नो बडी लाइक नॉट एवरीबडी वॉज टेकिंग द व्हीकल टू ट्रैवल. मीन्स मोस्ट ऑफ द मैनी पीपल वर वॉकिंग ऑन देयर फीट. स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स. यार्ड्स मीन्स बाहर के एरिया में फिर भी अब स्नो थी, but nobody was taking the vehicle to ride over the snow. But then also the snow was all around, मतलब फिर भी जो बर्फ़ थी वो चारों तरफ बिखरी हुई थी, मीन्स ढकी हुई थी. The land was covered with the snow. The water ran in streams down the village street. और जो पानी था वो एक छोटी, स्ट्रीम मीन्स स्मॉल रिवर, एक छोटी सी नदी में बह रहा था. विलेज स्ट्रीट मीन्स उस गांव की गलियों में पानी बह रहा था. Two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads, right? So two little girls, अब दो लड़कियां बाहर, घर के बाहर मिलती हैं, ठीक है? और लेन में, लेन मीन्स अगेन यू कैन से अ रोड और एन ओपन एरिया, राइट? बिटवीन टू होमस्टेड्स. होमस्टेड मीन्स एरिया विद फार्म्स, मतलब घर होता है और घर
घर के आसपास क्या होती है, अगर फार्मलैंड है मीन्स बहुत ज़्यादा जगह है, फार्म की तरह फील्ड की तरह जगह है, तो उसे क्या बोलते हैं, होम स्टेड, राइट। अ हाउस विद लाइक सराउंडिंग विद फार्म्स और फील्ड्स, राइट। सो वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ मिलती हैं। Where the dirty water after running through the farmyards had formed a large puddle, ठीक है। और उन्हीं के घर के आसपास जहाँ वो मिलती हैं, उन्हीं के घर के आसपास या उस जगह के आसपास पानी बह रहा था, और वो पानी क्या था, गंदा पानी था। क्यों गंदा था, क्योंकि वो फार्म यार्ड मीन्स फील्ड एरिया से बह के चला आ रहा था उस छोटे से पडल में। पडल क्या होता है, स्मॉल पूल। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम से कुछ ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं मेन स्ट्रीम से, मीन्स मेन रिवर से, और वो जाके जब इकट्ठा हो जाती हैं एक जगह, तो जो बहता हुआ पानी है वो तो साफ़ रहता है, बट जो इकट्ठा हो जाता है पानी एक स्मॉल पूल की तरह, तो वो क्या हो जाता है, वो लगभग कैसा पानी होता है, डर्टी वाटर होता है, राइट। तो ऐसा यहाँ भी हुआ था कि पानी जो था, जो पूल में इकट्ठा हुआ था, वो डर्टी था। वो क्यों डर्टी था, क्योंकि वो फार्म यार्ड्स मीन्स फील्ड एरिया से बहता हुआ चला आ रहा था। वन गर्ल वॉज स्मॉल एंड अदर अ लिटिल बिगर। एक लड़की उनमें से छोटी थी और दूसरी उससे थोड़ी सी बड़ी। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। और उनकी मम्मियों ने उन्हें ड्रेस किया था, मतलब अच्छे से ड्रेस अप किया था उनका, किसमें, न्यू फ्रॉक्स में। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक एंड द अदर वोर अ येलो वन। और उसमें से एक लड़की ने ब्लू फ्रॉक पहना था, और जो दूसरी लड़की थी उसने येलो फ्रॉक पहना हुआ था। एंड बोथ हैड रेड हैंकरचीफ्स ऑन देयर हैंड्स। और दोनों के सर पे क्या था, हैंकरचीफ बंधा हुआ था, वो भी किस कलर का, रेड कलर का, राइट। दे हैड जस्ट केम फ्रॉम द चर्च व्हेन दे मीट। और वो दोनों जब मिली तो वो कहाँ से आई हुई थी, चर्च से। एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर्स देयर फाइनरी। फाइनरी का मतलब आप देख सकते हो, मैंने एरो करके लिखा हुआ है, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, क्योंकि वो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, तो और उनकी मम्मियों ने जो भी उनका ड्रेसअप किया था, क्लोथ्स, ज्वेलरी, विच वॉज लुकिंग वेरी ब्राइट एंड फाइन, सो ईच अदर दे बोथ लाइक बोथ द गर्ल्स दे वर शोइंग देयर क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज टू ईच अदर, राइट। हम भी ऐसा करते हैं, जब नए नए कपड़े पहनते हैं या कुछ खरीदते हैं, तो हम भी अपने दोस्तों को दिखाते हैं, फ्रेंड्स को दिखाते हैं। सो दीज दे बोथ वर डूइंग द सेम थिंग। द फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी एंड देन दे बिगैन टू प्ले। पहले तो वो आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, वो भी कहाँ से आई थी, वो लोग चर्च से। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने क्लोथ्स, अपने ज्वेलरीज और ये सब दिखाने के बाद दे स्टार्टेड प्लेइंग। Soon the fancy took them to splash about in the water, right। So fancy took them का मतलब क्या है, वो दोनों इंटरेस्टेड हो गई कुछ और चीज़ करने में। मतलब अब पहले तो वो सिर्फ अभी तक पानी में थी, पर अब उनको और इंटरेस्ट आ गया कि पानी के साथ कुछ किया जाए, मीन्स पानी में खेला जाए, लाइक दिस। सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है साउंड ऑफ वाटर। अब आपने देखा होगा, कभी आप अगर नदियों में अगर आप जाते हो, रिवर में, गंगा में नहाने वाने के लिए, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, आप जब कभी भी आपने देखा होगा, या नॉर्मली अगर किसी गड्ढे में भी पानी भरा है, तो जब आप ज़ोर से हाथ या पाँव अपना मारते हो उस पानी में, तो क्या होता है, पानी उठ के ऊपर की ओर आता है। वाई, बिकॉज यू आर बीटिंग द वाटर एंड इट इज़ कमिंग आउट। सो आप देखते हो कि वो कई जगह ऊपर उठ के वो दूसरी जगह, आसपास की जगहों पे वो फैल जाता है। तो दैट इज़ दिस एक्टिविटी इज नोन एज स्प्लैशिंग, राइट, और स्प्लैश। सून द फैंसी टुक देम। फैंसी टुक देम अभी मैंने बताया कि वो पानी में पहले तो आराम से वो दे वर देयर इन द वाटर, बट सडनली दे थॉट दैट दे शुड बी इंजॉइंग द वाटर विद डूइंग व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी, स्प्लैशिंग एक्टिविटी, to splash about in the water, and the smaller one was going to step into the puddle। अभी मैंने puddle बताया मीन्स स्मॉल पूल। तो जो उन दोनों में से छोटी लड़की थी, वो तुरंत उस puddle में, मतलब उस छोटे से पूल में जाने लगी। शूज़ एंड ऑल व्हेन द एल्डर चेक्ड हर। और वो शूज़ पहन के, कपड़े पहन के, सब जो भी था वो पहन के जाने लगी। तो इसी टाइम पे उसने, जो एल्डर थी, मतलब जो उससे बड़ी थी, उसने उसे चेक किया मीन्स स्टॉप किया, कि अगर तुम ऐसे पानी में जाओगे वेयरिंग योर शूज़ एंड सॉक्स, तो यू विल गेट वेट,
राइट। तो उसने चेक किया उसे कि अगर तुम ऐसे शूज़ और शॉक्स पहन के जाओगी तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट वेट, मतलब तुम भीग जाओगे, तुम्हारे सारे कपड़े गंदे और भीग जाएंगे, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। डोंट गो इन सो मलाशा सेड शी। सो अकोलिया ने यहाँ पे मलाशा को क्या किया, मना किया कि तुम उसके अंदर ऐसे इस तरीके से, मतलब बाय वेयरिंग ऑल द ड्रेस मीन शूज़ एंड शॉक्स, डोंट गो इनसाइड द वाटर, योर मदर विल स्कोल्ड यू मतलब डांटना। आप ऊपर देख सकते हो मैंने लिखा है टू से बैड थिंग्स इन एंगर, मतलब गुस्से में, क्योंकि अगर ये वो ऐसा करती तो उसके शूज़ और सॉक्स भीग जाते, उसके कपड़े भी गंदे हो जाते, तो ऐसे में उसकी मम्मी ने या माँ ने वो डांट खाती, मीन्स उसकी मम्मी ज़रूर डांट लगाती। सो योर मदर विल स्कोल्ड यू, आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। टेक ऑफ मतलब टू रिमूव, मतलब उतार देना। सो यहाँ पे अकोलिया ने उससे बोला मलाशा को कि मैं तो अपने शूज़ और जो भी स्टॉकिंग मीन्स अ काइंड ऑफ अ सॉक्स यू कैन से, एक सॉक्स की तरह होता है वो, स्पेशली इट इज़ वियर इट, गर्ल्स वियर इट, राइट। सो आई विल टेक ऑफ माई शूज़, मैं अपने जूते और मोजे उतारने जा रही हूँ और तुम भी ऐसा कर लो, राइट। So, do you think the girls will go into the puddle? Now, it is a question asked by the author कि क्या आपको लगता है कि girls puddle में जाएंगी? तो according to this story, it is yes. They are. Why they are removing the clothes or why they are removing removing their shoes and socks? Because they want to go into the puddle. Puddle means that pool. Now, next line. They did so, and then picking up their skirts, began walking towards each other through the puddle. फिर उन दोनों ने वैसा ही किया, अपने जूतों और मोजों को उतार के वो अपने स्कर्ट्स को थोड़ा सा ऊपर करके और एक दूसरे के साथ उस पानी में चली गई, मतलब उस पूल में चली गई और उन्होंने एक दूसरों की तरफ आना शुरू कर दिया। वेयर इन द पूल। द वाटर केम अप टू मलाशास एंकल्स एंड शी सेड इट इज़ डीप, अकोलिया आई एम अफ्रेड। और जैसे ही पानी के अंदर मलाशा गई तो वो पानी उसके एंकल मतलब एड़ी, एंकल मीन्स एड़ी, द पार्ट दैट जॉइंट्स योर फीट विद योर लेग, राइट। सो एंकल मीन्स एड़ी। सो जब उसके एड़ियों के ऊपर तक पानी आ गया तो वो डर सी गई और उसने अकोलियो से तुरंत कहा कि अकोलिया ये पानी मेरे पैरों तक है, मीन्स मेरे एंकल के ऊपर तक है और मुझे अब डर लग रहा है। कम ऑन रिप्लाइड द अदर। सो यहाँ पे अकोलिया ने बोला कि डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल पूल, राइट। वो एक छोटा सा पूल है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, डोंट बी फ्राइटेंड, इट वोंट गेट एनी डीपर। और उससे वो आगे बोलती है कि तुम डरो मत, ये तुम इसमें मतलब अंदर यू विल नॉट सिंक मतलब तुम डूबोगी नहीं, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल पूल। When they got near one another, Akolia said, "Mind, Malasha, don't splash. Walk carefully." ठीक। सो जब वो एक दूसरे पूल में मीन्स उस पडल में जब एक दूसरे के पास वो आ जाती हैं, काफ़ी पास हो जाती हैं, तो अकोलिया ने बोला मलाशा को कि मलाशा तुम अपने पाँव या हाथों को पानी में धीरे धीरे से रखो या चलाओ, क्योंकि वो बिकॉज शी स्टार्टेड इन्जॉइंग द वाटर, वो पानी को इन्जॉय करने लगी थी, पैरों को या हाथों को उस पानी पे तेज तेज से मारने लगी थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस द वाटर वॉज राइजिंग अप। ठीक है, पानी ऊपर की ओर उठ रहा था। तो इसी पे अकोलिया ने क्या कहा, मलाशा को बोला कि धीरे आराम से चलो और पानी में इस तरह मत चलो, नहीं तो पानी क्या होगा, कपड़ों को हमारे गंदा कर देगा, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। शी had hardly said this when Malasha plumped down her foot so that the water splashed right onto Akolia's frock, right. शी हैड हार्डली यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है ओनली जस्ट, मतलब तुरंत या अभी उसने कहा ही था। किसने? अकोलिया ने कहा ही था, ऐसा कहा ही था कि तुम आराम से चलो, नहीं तो तुम्हारे चलने की वजह से तुम्हारे स्टेप मतलब जो तुम इतने तेज़ से स्टेप रख रही हो, मतलब अपने पाँव को रख रही हो, उस वजह से क्या हो रहा है, पानी ऊपर की ओर उठ के आ रहा है और हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे।
और इतना ही उसने कहा ही था कि इतने में मलाशा ने क्या किया, प्लम डाउन मीन्स पुट हैविली, बहुत तेज़ी से अपने पैरों को उस पानी में, उस छोटे से पूल में इतनी तेज़ी से पटका कि क्या हुआ, जिसकी वजह से वाटर स्प्लैश मीन्स अभी मैंने बताया कि जब आप पानी में थपथपाते हो तो पानी पानी क्या होता है, उठता है, ऊपर उठता है, और आपके ऊपर और दूसरों के ऊपर भी वो उठ के चला जाता है। तो वैसे ही हुआ कि जैसे उसने अपने स्टेप्स मतलब जैसे अपने फुट को उसने तेज़ी से पानी में मारा, तो पानी सारा ऊपर की ओर उठा, और अकोलिया का जो फ्रॉक था, जो उसने पहन रखा था ड्रेस उस टाइम, वो पूरा भीग गया, उसमें पूरा पानी लग गया। द फ्रॉक वॉज स्प्लैश्ड, राइट, एंड सो वर अकोलियाज आइज एंड नोज। अब सिर्फ वहाँ पे ये पानी ने जो उठ रहा था, जो कि मलाशा की वजह से उठा था, ठीक है, मलाशा के पाँव की वजह से तेज़ी से जब उसने पाँव रखा पानी में तो वो पानी ऊपर आया, तो इसकी वजह से ना सिर्फ अकोलिया का फ्रॉक ख़राब हुआ था, बल्कि उसके आईज़ और नोज़ में भी पानी चला गया था। When she saw the stains on her frock, she was angry and ran after Malashas. अब क्योंकि वो पानी गंदा था, जैसे कि अभी हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, क्योंकि वो पानी गंदा था, क्योंकि वो फार्मलैंड से आ रहा था, तो इस वजह से पूरा फ्रॉक जो अकोलिया का फ्रॉक था वो पूरा गंदा हो गया। शी वॉज एंग्री एंड रैन आफ्टर मलाशास, और वो इतना गुस्सा हो गई कि मलाशा के पीछे दौड़ पड़ी उसको मारने के लिए। टू स्ट्राइक मीन्स टू बीट हर, राइट, वो मलाशा के टूवर्ड्स के पीछे दौड़ गई ताकि वो उसे अपने गुस्से की वजह से उसको मार सके, बिकॉज शी मेड हर फ्रॉक डर्टी, राइट। Malasha was frightened and seeing that she had got herself into trouble, ठीक है। अब मलाशा बहुत डर गई क्योंकि उसने देखा कि अब वो किस में आ चुकी है, प्रॉब्लम में। ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम। अब उसने देखा कि क्योंकि उसने उसकी इस हरकत ने, जो कि हरकत उसने की है, पानी में तेज़ से अपने पैरों को वो पटक रही थी, इसकी वजह से अकोलिया का फ्रॉक गंदा हो गया था, उसके चेहरे में भी पानी आ गया था। तो इस वजह से जब उसने देखा कि अकोलिया बहुत गुस्से में हो गई है या गुस्से में आ गई है, तो उसने क्या किया, उसे पता चल गया कि नाउ शी इज़ इन डीप ट्रबल। शी स्क्रैम्बल्ड मीन्स टू मूव क्विकली आउट ऑफ द पडल, वो पूल से तुरंत बाहर आती है, एंड प्रिपेयर टू रन होम, और वो तुरंत अपने घर के लिए, घर को भाग जाना चाहती थी कि मैं अगर घर में भाग जाऊंगी तुरंत के तुरंत तो अकोलिया मुझे पकड़ नहीं पाएगी और वो मुझे मार भी नहीं पाएगी। जस्ट देन, सो लेट प्रोसीड फर्दर। अकोलिया's mother happened to be passing, happened means resulted, और तभी जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और मलाशा was escaping herself from अकोलिया, तो ऐसे ही टाइम पे अकोलिया की जो मदर थी वो वहाँ से जा रही थी। एंड सीइंग दैट हर डॉटर स्कर्ट वॉज स्प्लैश्ड, और जब उसने देखा कि उसकी बेटी का जो फ्रॉक था वो एकदम गंदा हो चुका है पानी की वजह से, एंड हर स्लीव्स, और उसके फ्रॉक और स्लीव्स डर्टी हो चुके हैं, शी सेड, उसने कहा, यू नॉटी डर्टी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ठीक है। तो अपनी बेटी से उसने कहा कि तुम एकदम मतलब नॉटी मीन्स बहुत शरारती लड़की हो, और तुमने क्या किया, ये अपना पूरा गंदा कर दिया, अपना सारा फ्रॉक, शूज़ एंड ऑल दैट, राइट। मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। सो मलाशा ने कहा अपने मम्मी से, अकोलिया ने कहा अपनी मम्मी से कि मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। सो उसने कहा कि मैंने नहीं किया, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, दिस इज़ डन बाय मलाशा, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, विच वर्ड कैन बेस्ट रिप्लेस द फ्रेज ऑन पर्पस इन द अबाव लाइन। सो ऑन पर्पस मैंने टिक भी किया है बॉक्स में, इंटेंशनली, क्योंकि जो भी मलाशा ने किया था वो इंटेंशनली था, मतलब जानबूझ के उसने पानी में खेलना शुरू कर दिया, अपने पैरों को तेज़ तेज़ मारना या थपथपाना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से अकोलिया का फ्रॉक गंदा हो गया था, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। At this, Akolia's mother seized Malasha's and struck her on her back. और इस पे अब क्योंकि अब अकोलिया ने सारी चीज़ें अपनी मम्मी को बता दी थी, तो अकोलिया के मदर को गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, सीज्ड मीन्स टू होल्ड, उसने मलाशा को पकड़ा और उसके पीछे मार दिया। स्ट्रक मीन्स बीटन, ठीक है, उसको मारना शुरू कर दिया उसके पीठ पर। मलाशास बिगैन टू हाउल मीन्स
चिल्लाना या रोना, सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट। हर मदर केम आउट। अब मलाशा ने, जब उसकी अकोलिया के मदर ने उसको मारा तो मलाशा ने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, और इतनी तेज से वो चिल्ला रही थी कि उसको उसने इतनी तेज से इसलिए चिल्ला रही थी ताकि आसपास के सारे लोग और दूर दूर तक उसकी आवाज़ें लोग सुन सके। हर मदर केम आउट, और उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी वहाँ पर आ गई। राइट, सो लेट इट फर्दर। वाई आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर? तो उसकी मम्मी ने, मलाशा की मम्मी ने अकोलिया के मम्मी से पूछा कि तुम मेरी बेटी को मार क्यों रही हो? सेड शी एंड बिगैन स्कोल्डिंग हर नेबर। और वो भी स्कोल्डिंग मतलब वो भी कुछ उस अकोलिया के मदर को उसने भी डांटना शुरू कर दिया। किसकी मदर ने? मलाशा की मदर ने। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल। अब एक दूसरे से बातें शुरू हो गई मतलब एक तरफ वो बोल रही थी, एक तरफ दूसरा बोल रहा था। राइट, सो बोथ द मदर्स स्टार्टेड क्वारलिंग, मतलब गुस्से में एक दूसरे से उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। द मेन केम आउट एंड अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट। अब रास्ते पे जहाँ ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, अकोलिया और मलाशा की मदर, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए। राइट, द मेन केम आउट, अब लोग आ गए, मतलब जो वहाँ पे लोग थे वो आ गए, और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई उस रास्ते पे जहाँ ये दोनों लेडीज़ लड़ाई कर रही थी। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, और दोनों लेडीज शाउट कर रही थी और कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। दे ऑल वेंट ऑन क्वारलिंग। राइट, और वो मतलब बस उनकी लड़ाई चली रही थी और आगे तक बढ़ती चली गई टिल वन गेव अनदर अ पुश। और तब तक ये लड़ाई बढ़ गई जबकि एक टाइम ऐसा भी आया कि एक ने दूसरे को क्या कर दिया? पुश कर दिया, मतलब उसे धक्का दे दिया। राइट, सो लेट प्रोसीड फर्दर। वन गेव अनदर अ पुश, और तब तक ये लड़ाई चलती रही। पहले तो बहस हो रही थी, सिर्फ बातों से बहस, मतलब बातों से लड़ाई हो रही थी, पर अब लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई थी कि एक ने दूसरे को क्या कर दिया? धक्का दे दिया। एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज। अफेयर मीन्स इवेंट, राइट, एंड कम टू ब्लोज मीन्स स्टार्टेड। एंड द फेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लो, और इसका मतलब है कि अब ये समय आ गया था कि वहाँ पे उस लड़ाई झगड़े का दूसरा ही स्टेज शुरू हो गया था। दूसरे स्टेज पहुँच गया था। इसका मतलब है कि पहले तो वो सिर्फ मुंह से लड़ाई कर रही थी, नाउ दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर। नाउ दैट मीन्स the quarrel that was going on between these two ladies is now on the other stage or level. When Akolia's old grandmother stepping in among them tried to calm them. ठीक है, और ये लड़ाई शुरू ही हो गई थी, दूसरे लेवल पे भी पहुंच गई थी। दूसरे लेवल पे मतलब पुश करना भी एक दूसरे को शुरू हो गया था कि जब अकोलिया की ग्रैंड मदर, मतलब अकोलिया की दादी ने बीच बचाव किया। स्टेपिंग मीन्स इन बिटवीन, मतलब बीच में आके दोनों को शांत कराने की कोशिश की। काम मीन्स टू स्टॉप। काम मीन्स ओवर हियर मीन्स टू स्टॉप और टू मेक देम रिलैक्स। राइट, सो दोनों को शांत कराने की कोशिश की। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स? अब उन्होंने, उस दादी माँ ने, जो अकोलिया की दादी माँ थी, उन्होंने दोनों को समझाया कि तुम लोग दोस्त हो और ये क्या कर रहे हो आपस में, क्यों लड़ाई कर रहे हो? इस तरीके से उन्होंने समझाया। इज़ इट राइट टू बिहेव सो? क्या ऐसा बिहेव करना जायज़ है? इट इज़ राइट टू बिहेव लाइक दिस ऑन अ डे लाइक दिस टू ऑन अ डे लाइक दिस। ये क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो फेस्टिवल, वहाँ पे ईस्टर का फेस्टिवल चल रहा था, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आज भी, मतलब ऐसे दिन पे भी तुम लोगों को लड़ाई करना क्या जायज़ लगता है? मीन्स इट इज़ राइट टू फाइट, fight like this on this particular day. On this particular day means on this very beautiful day, on this occasion, on this festival occasion, you people are fighting, and is this thing is right or not, or wrong? It is a time for rejoicing and not for such folly as this. अब उन्होंने फिर बताया, समझाया कि ये समय रिजॉइसिंग का है। रिजॉइसिंग मतलब इंजॉय करने का है, बिकॉज वी आर हैविंग आवर फेस्टिवल दैट इज ईस्टर, एंड नॉट फॉर सच फॉली। फॉली मीन्स स्टुपिडिटी।
ठीक है। तो उन्होंने समझाया उन दोनों लेडीज़ को कि ये तो एंजॉय करने का दिन है, ये तो हमारी खुशी मनाने का दिन है, और ना कि ये सब ऐसी स्टुपिडिटी करने का टाइम है जो कि जैसे तुम लोग कर रहे हो। दैट मीन्स यू पीपल आर फाइटिंग, बट यू शुड नॉट बी फाइटिंग, यू शुड बी enjoying the day because the festival of Easter was going on. So let's proceed further, class. So this is where we end our topic for today. Thank you all. Stay safe and take care. So, students, today we have completed pages 13 and 14 of this particular chapter, right? So, we started the chapter Little Girls Wiser Than Men, and we have completed 2 pages, right, of this chapter. And tomorrow, that means in our next class, we will continue with the last page, that is page number 15, and we will finish our periodic test 1 in that particular class, periodic test 1 syllabus in that particular syllabus, in that particular class, right? And in our next class means means the coming class of or after the next video, we will start with our term 1 syllabus, right? So it is very mandatory for you to buy the books as soon as it is possible for you, so that your syllabus should not left behind, right, because of the books and copies. So tell your parents to buy the books, and till then, be happy and stay safe. Thank you, class.